How to growing in different representatives, which is the constitutionalizations, and it's a referendums which is the recognize the procedures, and it's a different revolving the part of the approach. How do the different growth and its orientation of the society, which is the different representatives and its orientation for their different growing and its institutionalization. It is the different efficiency and it's a regulatory for their transactions of the society, and it's a procedures about the growing and its influential association, and it's a different navigation of the socially and its economically procedures. It is the role in its regulatory for their transactions, which is the efficiency, and it's a part of the approach, which is the growth and its orientation of the socially and its economically. सही में यार आज मूड ठीक नहीं है, पता है क्यों? आज आज अजीब सा मन हो गया है. It is the regulatory and transformation for their defining and its association for the different regardless and its procedures for their efficiency, and it's a growing and its influential part of the approach, which is the growth and its orientation for the social and its economically procedures. It is the efficiency and it's a core and it's evolutionary for their transition of the society. The efficiency and it's a dynamic institutionalization for their procedures, and it's a part of the approach. How do the different growing and its influential association and it's a different लग रहा है बाल अब कटवाना पड़ेगा, इधर वाला बढ़ गया. It is the challenges and it's a it is the challenges for their gracefully responsibility, and it's a hidden for their transformations, and its scope and its orientation of the socialization, and it's all about their different phenomena of the structural and its resource efficiency. It is the procedures and it's all about the growing and its association for the different finding of the political instability like the Bengals, and they have the renunciation of different parties and winning parties like BJP, which is today is a oath ceremony of Subhendra Adhikari. गजब का नाम है. जो पहले टीएमसी में थे अब बीजेपी में आके फिल्टर हो गए. I am a BJP supporter, but I am against of this type of unethical behavior which is going through in बीजेपी sides. यार बीजेपी को प्योर वर्कर्स को लाना चाहिए जो ग्राउंड लेवल से काम करके ऊपर तक आए हैं. कोई टीएमसी में से आ जा रहा है, कोई बीजेपी में, कोई कांग्रेस से आ जा रहा है, कोई आम आदमी में आ जा रहा है, उसी को बीजेपी एकदम फ्रंट सीट पर लाके खड़ा कर दे रही है. ये मतलब यार बीजेपी ने कोई भी जनता आपको चूज कर रही है तो आप अपने तरफ से कोई भी कैंडिडेट को लेकर आओ. बीजेपी में बहुत कैंडिडेट नहीं होंगे जो ग्राउंड लेवल पे होंगे, उस कैंडिडेट को लाओ. थोड़ा सा ट्रस्ट बैठे यार पब्लिक का भी. आप उसी कैंडिडेट को ला रहे हो जो कैंडिडेट को, जो पार्टी को भारतीय जनता कै साल से पीछे ढकेल रही है. कै साल से आप उसी में से कैंडिडेट चूज करके एकदम फ्रंट पे ला दे रहे हो. कैसी आपकी चाणक्य नीति है यार. It is the transformation for their gracefully responsibility, and it's a procedures about the growth, and it's a जो आदमी 2019 में बीजेपी को गाली दे रहा था वो आदमी आज बीजेपी का ही चीफ मिनिस्टर बना. It is the it is the transformation, and it's a regulatory for their different gracefully responsibility जो defining for their association and its different regardless of the prospectus for their ideologically. How do the different growth and its orientation of the socially and its economically procedures like the योगी आदित्यनाथ जैसा कैंडिडेट चाहिए हर स्टेट में. ऐसा नहीं है कि कोई भी बीच इधर से उधर टपक के आया उसको आप फ्रंट पे ला दे रहे हो. ऐसा नहीं होना चाहिए. योगी आदित्यनाथ एकदम शुरू से बीजेपी में काम कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, करते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं. वो ऐसा प्योर कैंडिडेट चाहिए. ऐसा नहीं है कोई एकदम क्या बोलते हैं उसको, स्टेपनी की तरह दूध 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 स्टेपनी की तरह दूध दूसरा जगह से लाकर टिपका दे. It is the challenges for the different way for their efficiency, and it's a growing for their different regardless, and it's a prospectus for their ideologically, which is the influential and it's a part of the approach. How do the different navigation of the society, जैसे अभी राघव चड्ढा है तो देखना वो भी आने वाले टाइम में बीजेपी का बहुत बड़ा लीडर बनेगा. अभी बीजेपी को वही लोग चाहिए जो बाहर से लौट कर आए हैं. जनता ने उसी आदमी को उधर से ठकेल ठकेल के बाहर किया. बीजेपी टपका दे रही है फ्रंट में. लास्ट में बीजेपी को देखना, लास्ट में जनता भी वही दिखाएगी
जैसे कांग्रेस के साथ था, इसी में कांग्रेस के साथ कर रही है। It is the challenges for their gracefully for their transition and it's all about the phenomena of the structural। हम भी कांग्रेस के पहले सपोर्टर थे, फिर 2019 में हमने माइंडसेट चेंज किया और बीजेपी के सपोर्टर बन गए, क्योंकि हमें लगा कि नहीं, दिस पार्टी हैव एनर्जी टू चेंज दी सिविलियन प्रॉब्लम। जैसे ग्राउंड लेवल पे प्रॉब्लम को चेंज करने का काम जो है इस पार्टी में देखने को मिला, फिर हम लोगों ने चेंज कर दिया, अब बीजेपी को वोट देना शुरू कर दिए। इट इज़ दी चैलेंजेस कभी कभी टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पेट्रियार्की माइंडसेट रखना चाहिए कि हम लोग दादा दे रहे थे कांग्रेस को, पापा दिए कांग्रेस, ऐसा थोड़ी है। टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होना चाहिए यार। लालू प्रसाद को मेरे ग्रैंडफादर देते थे, अब बीजेपी को दिया जाता है। वो टाइम अलग था कि उस टाइम, समझ रहे हो, तो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होने से ऐसा नहीं है कि हम लोग रिजिड माइंडसेट हैं। टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होना चाहिए, जो अच्छा करे। हम लोग तो भाई गरीब आदमी हैं, हमें क्या कि कोई बीजेपी आए, कांग्रेस आए, आम आदमी पार्टी आए, एनसी आए, पीसीएसई आए, सीपीआई आए, कोई आए, काम करना चाहिए। गरीबों को ज़्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए, गरीबों को झोपड़ी नहीं पड़ना चाहिए, गरीबों को प्रताड़ित नहीं होना चाहिए, गरीबों का रोजगार नहीं रुकना चाहिए, गरीबों का जो नेसेसरी चीज़ है, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, अच्छी सड़कें हो गई, पानी हो गया, बिजली हो गया, ये सब क्या है, गरीबों के लिए नेसेसरी चीज़ है। लेकिन इसी चीज़ को अगर आप सही से नहीं प्रोवाइड करते हो, तो भाई किस बात की ये पार्टी, एक्स पार्टी, वाई पार्टी, जेड पार्टी, किसी का भक्त बनना है लेकिन एक्शन। इट इज चैलेंजेस फॉर, जो काम करे उसी को वोट देना है। वी आर द सिटीजन्स ऑफ, वी आर द सोवरेन सिटीजन ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री ऑफ इंडिया। वी हैव ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू चूज एनी पॉलिटिकल पार्टी। ये नहीं कि जो हमारे दादा देते थे उसी को हम लोग घसेट घसेट कर नहीं लाएंगे, चेंज करना पड़ेगा टाइम के अकॉर्डिंग। जैसे अभी हम लोगों को बीजेपी अच्छी लगती है तो हम बीजेपी को देते हैं। इट इज़ द चैलेंजेस फॉर देयर ग्रेसफुली रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ग्रोथ एंड इट्स ओरिएंटेशन। पहले कांग्रेस अच्छा करते थे, कांग्रेस को देते, हो सकता है कि बीजेपी आने वाले टाइम में अच्छा नहीं करता, बीजेपी को नहीं दिया जाएगा। It is the challenges for their gracefully responsibility and its a scope for their balance and its a reflexivity for their growth and its orientation for the different regardless how do the different navigation of the society and its a conservative of the socially and its economically procedures the efficiency and its a gracefully transition of the socially and its accountability for the different way and its balance for their transformations. It is the navigation and it's all about the phenomena of the structural and its growth, about the different regardless and its expectations for their reality. How do the different challenges for their efficiency and its growth and its balance for their transformation। अभी शुभेंद्र अधिकारी का देख रहे थे कि उनके पास कार नहीं है, गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है। यार हमारे यहाँ बीजेपी, हमारे यहाँ बिहार में जब किसी का ग्रुप डी निकलता है ना, तो उसके अगला 1 साल बाद से उस पहले फॉर्चुनर लाता है, पहले सफारी लाएगा, फिर 5 साल बाद फॉर्चुनर लाएगा, फिर उसके 6 साल बाद से 5 करोड़ का घर बनवाता है। अब वो आदमी 30 साल से पॉलिटिक्स में है, उसके पास एक कार नहीं है। हम लोग इतना बड़का गधे हैं। गजब यार। पेपर में इंडिया में जो भी काम होता है ना पेपर पे होता है। अगर मैं पेपर पे लिख दूं कि आई एम नॉट अलाइव, तो कोई भी पॉलिटिक्स, कोई भी अधिकारी मान लेगा कि मैं अलाइव नहीं हूँ, क्योंकि पेपर पे मैक्सिमम जो काम होता है इंडिया में पेपर पे होता है। रियलिटी में आपको उसके सामने भी खड़ा हो जाओगे। मैं आपको एक इंसिडेंट बता रहा हूँ कि मैं जब एक एग्ज़ाम देने गया था, एन टी पी सी क्या था कि क्या, स्वयं ऐप से मैंने एक कोर्स किया था, स्किल सॉफ्ट स्किल का कोर्स मैंने ज्वाइन किया था। उसके बाद से एग्ज़ाम देना होता है, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। मुजफ्फरपुर एग्ज़ाम पढ़ा, मेरे पास आधार कार्ड बहुत पुराना था, बाकी उस पर सब कुछ एकदम अप टू डेट था, कोई चेंजिंग नहीं था। फिर वहाँ पे एक आदमी था जो विजिलेटर होता है, उसने चेंज किया, उसने चेक किया मेरा आधार कार्ड, कह रहा है कि नया आधार कार्ड लाओ। साला जिंदा आदमी खड़ा है, उसको हम बोले कि मेरा ये नंबर है 2237 XYZ अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ऐसा नंबर है, मेरा नाम ये है, मेरा एड्रेस ये सब कुछ बताया, बोल रहा है कि नहीं नया लिखवा कर लाओ। अब हम उसको गए नया लिखवा कर लेकर आए। रुको दोस्तों, नया निकलवा कर लाएं। फिर उसके बाद देखे कि उसमें भी कोई चेंजिंग नहीं था। रुको दोस्तों, एक फ़ोन